Hello students, and I welcome you all to the YouTube channel of Infinity Engineering Academy. So basically we are discussing here some of the MCQs which have been asked in some of the competitive examinations, and we are dealing one-to-one subject. So now in this particular case we are dealing with the MCQs asked in hydrology subject. So I am going to begin with these MCQs now. First MCQ, what is hydrological cycle? So this is a very basic question that you know, but sometimes what happens, because of the options you tend to get confused. That's why I have put this MCQ. First option says that it is a process involved in the transfer of moisture from sea to land. Second option says it is process involved in transfer of moisture from sea back to sea again. Third option says it is process involved in transfer of water from snow melt in mountains to sea. And fourth option, processes involved in the transfer of moisture from sea to land and back to sea again. So of course in hydrological cycle we are having the transfer of moisture from sea to land, from sea to sea again, from snow melt in mountains to sea, but this option is the most complete one, because here we are talking about the transfer from sea. Again it is forming clouds, again it is condensing, after condensing it is coming in liquid state and falling on the land, again it is going back to the sea again. So this is a complete definition of hydrological cycle, whereas this is just a particular part of hydrological cycle. So you have to just see the options, read all the options carefully before answering. So your option here will be D. It is the process involved in the transfer of moisture from sea to land and back to sea again. Okay, so this summarizes the entire hydrological cycle. An accurate estimate of average rainfall in a particular catchment area can be obtained by which of the following methods? So these are some of the methods that they say are used for measurement of your average rainfall, and which is the most accurate one. See, accuracy will be considered when you can consider your normal local conditions, your environmental factors. So जो भी method में आपका local environmental factors, natural conditions consider होता है, वो आपका most accurate होगा. So arithmetic mean method में क्या रहेगा, आपके पास अलग अलग rainfalls available है, P1, P2, P3, P4. These are for different areas. आपने एक particular rain gauge station से एक रेनफॉल की वैल्यू आपने हासिल की और वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, लाइक A1, A2, A3, A4. एरिथमेटिक मीन में क्या है, हम इन एरियाज़ को भी कंसिडर नहीं करते, हम सीधा इनका एवरेज ले लेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 बाई 4. फिर थीसन पॉलीगॉन मेथड में क्या करेंगे, हम एटलीस्ट हम इन एरियाज़ को कंसिडर करते हुए इनका एवरेज लेंगे, जैसे P1 A1 प्लस P2 A2, P3 A3, P4 A4 अपॉन 4. सो बेसिकली ये दोनों मेथड्स क्या करते हैं, एवरेज ही फाइंड आउट कर रहे हैं. एक में हम जितना एरिया है उसके हिसाब से एवरेज करते हैं, दूसरे में विदाउट इवन कंसिडरिंग द एरिया. नॉर्मल रेशियो मेथड हम इसके लिए यूज़ नहीं करते. सो लास्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा है, आइसोहीटल मेथड. आइसोहाइट्स क्या है, बेसिकली आइसोहाइट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका रेनफॉल सेम है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल जहाँ पर भी इक्वल है, वैसे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन को आइसोहाइट कहेंगे. सो इस मेथड में क्या करते हैं, हम आइसोहाइट्स पहले तो बनाते हैं. अभी आइसोहाइट्स कैसे बनाएंगे, हम जो भी अपने रेनफॉल जहाँ पर भी सेम है वो सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे, बट वो करते हुए हम लोकल फैक्टर्स भी कंसिडर कर रहे हैं, कंटूर भी कंसिडर कर रहे हैं. तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, आपका कोई भी कैचमेंट एरिया है उसके लिए हमने ऐसे आइसोहाइट्स बना दिए. ये मेरे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेरा P1 रेनफॉल है, सो थ्रू आउट P1 है, इसमें थ्रू आउट P2 है, P3 है, P4 है. उसके बाद ये जितना भी एरिया है उसका मैंने प्लानीमीटर से एरिया फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली इन दोनों का एरिया, इस तरीके से मैं सारे एरियाज़ फाइंड आउट करूँगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे P1 और P2 रेनफॉल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A1, इन दोनों के बीच के एरिया को. ठीक है, सो A1 हम इससे जब फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, A1 एरिया जो है उसमें P1 और P2 का एवरेज रेनफॉल. सिमिलरली A2, इसमें P2 और P3 का एवरेज रेनफॉल. ठीक है, इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे.
सो बेसिकली इस मेथड में हम लोकल फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड. इट इज़ अगेन मेजरमेंट ऑफ P इंटू A, प्रेसिपिटेशन और एरिया को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हम थीसन पॉलीगन में भी कर रहे थे. बट इसमें हमने क्या किया है, हमने लोकल फैक्टर्स को कंसिडर करके पहले से आइसोहीट्स ड्रॉ किए हैं, आइसोहीट्स बनाए हैं, इसके लिए ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, सेकंड मोस्ट एक्यूरेट पूछते तो वी कैन से थीसन्स मेथड, बट मोस्ट एक्यूरेट इज आइसोहीटल मेथड. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे एनोनीमीटर, रेन सिमुलेटर, लाइसीमीटर एंड हाइग्रोमीटर, एंड इसके सामने आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ दी हुई है जो हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोलॉजी. आपको क्या मैच करना है, सपोज विंड स्पीड, तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, उसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आपका ये जो विंड, अगर हम स्टार्ट करें विंड स्पीड से, विंड स्पीड कैन बी फाउंड आउट बाय एनीमोमीटर. एनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड फाइंड कर सकते हैं. इट इज़ अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको ये 4 चीज़ें क्या है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. सेकेंड इज़ रेन सिम्युलेटर. रेन सिम्युलेटर किसके लिए फाइंड आउट, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर रेन सिम्युलेटर है क्या. बेसिकली फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आप क्या करेंगे, रेन का सिमुलेशन करेंगे. आप ऐसे कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे ताकि जो नेचुरल रेनफॉल आ रहा हो वैसा आप वहाँ पे एक टाइप का सीन क्रिएट करेंगे. ठीक है, देर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प यू टू डू दी सिमुलेशन ऑफ रेन. और रेन सिमुलेशन करने के बाद आप उसमें नीचे अलग अलग टाइप की सॉइल्स रखेंगे. ठीक है, सेम इंटेंसिटी, सेम कंडीशंस ऑफ रेनफॉल देंगे, एंड वी विल सी कि अगर आपने उन सॉइल पे उतना रेनफॉल किया तो उसके जो लास्ट एंड है, उसका जो आउटपुट है, वहाँ पे कितना पानी कलेक्ट होता है. सो बेसिकली क्या है ये, वी आर फाइंडिंग द इन्फिल्ट्रेशन, कितना पानी सॉइल से पास हो सकता है. दैट इज़ नथिंग बट योर इन्फिल्ट्रेशन. आपकी सॉइल कितना इन्फिल्ट्रेशन कर सकती है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, उसकी परमिएबिलिटी कितनी है. सो रेन सिमुलेशन इज़ यूजफुल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. लाइसीमीटर. लाइसीमीटर इज़ अगेन a device which is used to find out evapotranspiration. तो लाइसीमीटर से हम क्या फाइंड करेंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन. इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, जो भी आपका वेजिटेटेड लैंड है जिसमें आपका प्लांट या फिर वेजिटेटेड क्रॉप प्रेजेंट है, वो जो एरिया है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें पेनिट्रेट होगा या परकोलेट करेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ इवेपोट्रांसपिरेशन. इवेपोरेशन क्या है, पूरा जो लैंड सरफेस है उसमें कितना इवेपोरेशन होगा, लेकिन वेजिटेटेड लैंड सरफेस में कितना होगा उसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहेंगे, और उसके लिए ये लाइसीमीटर इक्विपमेंट इज़ यूज्ड. हाइग्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी. सो आपका इस केस में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एनीमोमीटर इज़ यूज्ड फॉर विंड स्पीड, rain simulator is used for infiltration, lysimeter is used for evapotranspiration, and hygrometer is used for humidity. The ratio of the average width to axial length of drainage basin. इसमें ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ योर एवरेज विड्थ, व्हाट इज़ एक्शियल लेंथ एंड व्हाट इज़ ड्रेनेज बेसिन. कहीं पे भी रेनफॉल जहाँ अकर हो रहा है, जो भी एक एनक्लोज्ड एरिया है जहाँ पे कोई रेनफॉल अकर होगा, उसको हम ड्रेनेज बेसिन मानेंगे. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कलेक्ट द रेनफॉल एंड ट्रांसफर इट एज रन ऑफ. सो दैट इज़ योर ड्रेनेज बेसिन. अब उस ड्रेनेज बेसिन का कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है. इसमें होगा क्या, आपके अलग अलग स्ट्रीम्स से एक स्ट्रीम में पूरा पानी इकट्ठा होगा एंड इट विल ऐड टू योर रिवर एज योर ड्रेनेज. सो बेसिकली इसका एक लेंथ है, इसका एक विड्थ है. इसको हम अगर स्टडी करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल शेप क्या है, वो कितना पानी रन ऑफ में देगा, कितना जल्दी रन ऑफ होगा. सो ये टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है. इसका एवरेज विड्थ और एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्रेनेज बेसिन, उसके रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं. ठीक है, क्योंकि हर एक ड्रेनेज बेसिन का अपना विड्थ रहेगा, अपना लेंथ रहेगा, लेकिन उनको कंपेयर करने के लिए एक हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे, उस रेशियो को हम कहेंगे फॉर्म फैक्टर. इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज विड्थ टू एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्रेनेज बेसिन. कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हम ड्रेनेज बेसिन के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ नथिंग बट आपका जो भी
सपोज दिस इज़ योर ड्रेनेज बेसिन, तो इसका जो भी पेरीमीटर है, मतलब जो वाटर शेड बोल सकते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हैं, उसका जो भी पेरीमीटर है उसको मैं डिवाइड करती हूँ किससे, उतने ही वाटर शेड को हम इक्विवेलेंट सर्कुलर एरिया में कन्वर्ट करें तो उसका जितना सरकमफ्रेंस आएगा उससे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाटर शेड हमेशा सर्कुलर हो, लेकिन हम इस रेशियो से क्या कर रहे हैं, वो कितना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सर्कुलर से मैच करता है वो फाइंड करेंगे। सो कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट क्या है, पेरीमीटर, आपका जो भी वाटर शेड है या ड्रेनेज बेसिन है उसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्कुलर एरिया सरकमफ्रेंस, जो आपने उसको, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ इसके डायमीटर को d से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सरकमफ्रेंस मिलेगा वो मैं इधर डिनोमिनेटर में पुट करूँगी, एंड दैट रेशियो इज कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट। सो दीज टू रेशियोज आर वेरी मच यूज फॉर एनी ड्रेनेज बेसिन। जब भी आप हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ्स पढ़ते हैं तब ये फॉर्म फैक्टर एंड कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट, इन दोनों से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट एंड फॉर्म फैक्टर, जो उसका फॉर्म इंडिकेट करता है। फॉर्म किससे डिनोट होगा, एक्सियल लेंथ, एक्सियल विड्थ से। सो उसका रेशियो लेंगे तो उसको हम कह देंगे फॉर्म फैक्टर। कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट, कॉम्पैक्ट है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब उसको हम इक्विवेलेंटली किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो जब इसमें हम पेरीमीटर को कंपेयर करें एक इक्विवेलेंट सर्कुलर एरिया के पेरीमीटर से, तो उसको कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट कहेंगे। सो हियर योर आंसर विल बी फॉर्म फैक्टर। रिवर चैनल फ्लड राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ A. Constructing a bypass channel from the river, diverting the river flood water, knowing flood hydrograph at different sections of river, both A and B. पहले तो राउटिंग क्या है, राउटिंग का प्रोसेस मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे हाइड्रोग्राफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हाइड्रोग्राफ आप किसी भी इंटेंसिटी के रेनफॉल के लिए जब बनाते हैं, सपोज दिस इज टाइम, दिस इज माय डिस्चार्ज क्यू, आपका जो हाइड्रोग्राफ है वो कभी भी सेम नहीं रहेगा। हर एक ड्रेनेज बेसिन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिसकी वजह से उसका हाइड्रोग्राफ अलग रहेगा। सेम ड्रेनेज बेसिन में भी हाइड्रोग्राफ्स अलग रहेंगे क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अलग है। सो इन सब का स्टडी करना उसको राउटिंग कहते हैं। फ्लड के लिए अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो फ्लड राउटिंग, एंड इफ़ वी आर डूइंग ऑल दिस स्टडी फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ रिवर तो उसको हम कहेंगे रिवर चैनल फ्लड राउटिंग। So the answer for this will be option C, knowing the flood hydrograph at different sections of river. उसको हम क्या बोलेंगे, river channel flood routing. An artesian aquifer has a thickness of 25 मीटर। एक एक्विफर है हमारे पास जिसका थिकनेस दिया है 25 मीटर। परमिएबिलिटी कितना है एक्विफर का, परमिएबिलिटी इज डिनोटेड बाय K, 45 मीटर per day. Transmissibility of the aquifer is asked. What is the transmissibility? See, permeability आपको कितना वाटर पास होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, बट एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए कितना वाटर पास होगा दैट इज डिनोटेड बाय ट्रांसमिसिबिलिटी। सो ट्रांसमिसिबिलिटी इज K इंटू H। सो यहाँ पे K इंटू H करेंगे आप 25 इंटू 45, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बट लुक एट द यूनिट्स, यहाँ पे मीटर पर डे है और आपके ऑप्शंस में क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो आपको सिर्फ यूनिट में कन्वर्जन करना है। सो 25 मीटर्स इंटू 45 मीटर्स पर डे, और पर डे के बाद एक 1 डे के लिए 24 आवर्स एंड 3600 सेकेंड्स। So this will give you the value as 0.0130 meter square per second. That is your option D. The estimation of flood can be made by which of the following? By physical indication of past floods, by flood discharge formula, by unit hydrograph and all of these. So अभी हमने देखा कि flood को हम कैसे find out कर सकते हैं। In flood routing we have seen that we can use the different flood hydrographs, we can make the different flood hydrographs. तो एक ऑप्शन तो यही है, इससे हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोग्राफ से। उसके अलावा क्या है, flood discharge formula. There are many empirical formulas which have been given to estimate the value of flood.
ठीक है, अलग अलग एरियाज, अलग रीजन्स के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं आपके पास। सो एम्पिरिकल मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड्स, जिस भी एरिया में पास्ट फ्लड अकर हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको उसको फिजिकली एग्जामिन करने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कोई मार्क्स होंगे, कोई आइडेंटिफिकेशंस होंगे, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्वायर अबाउट इट टू द पीपल हु हैव विटनेस दैट फ्लड। सो आपको बाय फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड्स उससे भी एस्टिमेशन ऑफ फ्लड्स कर सकते हैं। सो इन दिस केस योर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना फ्लड होने की संभावना है। Water loss through leaves of plants is termed as precipitation, infiltration, transpiration and surface evaporation. ठीक है, प्रेसिपिटेशन तो हो गया आपका रेनफॉल, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है इन एनी फॉर्म, उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। इसको हम लिक्विड फॉर्म हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विथ वाटर लॉस थ्रू लीव्स ऑफ प्लांट्स। इन्फिल्ट्रेशन हमने अभी देखा, कितना पानी आपके वाटर सरफेस के नीचे यानी कि आपके वाटर टेबल में जाके एड ऑन होता है, दैट इज़ योर इन्फिल्ट्रेशन। सरफेस इवेपोरेशन, अगेन इवेपोरेशन थ्रू सरफेस। सो ऑप्शन इज सी, ट्रांसपीरेशन। कितना वाटर लॉस या कितना इवेपोरेशन आपके प्लांट के लीव्स के सरफेस से होता है या स्टोमेटा से होता है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या है? जितना आपका वेजिटेटेड लैंड है या क्रॉप्ड लैंड है वहाँ से कितना इवेपोरेशन होगा वो इवेपो ट्रांसपीरेशन है, लेकिन प्लांट से कितना होगा वो ट्रांसपीरेशन है। अ ट्रायंगुलर DRH ड्यू टू अ 6 आवर स्टॉर्म। सो DRH पहले तो क्या है? DRH इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, मतलब ये ऐसा हाइड्रोग्राफ है जो डायरेक्ट रन ऑफ की वजह से हम बनाते हैं। वी आर सेइंग कि जितना रेनफॉल हुआ उतना सारा का सारा आपका कन्वर्ट हो गया रन ऑफ में, दैट इज़ योर DRH। सो ट्रायंगुलर DRH ड्यू टू अ 6 आवर स्टॉर्म, 6 आवर्स का स्टॉर्म अज्यूम यहाँ पे हो रहा है एक कैचमेंट एरिया में जिसका टाइम बेस है 100 आवर। सो 6 आवर का रेनफॉल है जिसकी वजह से एक हाइड्रोग्राफ के कंडीशंस दिए हुए हैं। ड्यू टू सम DRH ऑफ 6 आवर्स, मेरा जो DRH है उसका पीक फ्लो कितना है? 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टोटल कितना है? टाइम लैग 100 आवर्स। ठीक है, दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ माई डिस्चार्ज क्यू, दिस इज़ माई हाइड्रोग्राफ, बट ड्यू टू डायरेक्ट रन ऑफ पीक वैल्यू 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम कितना है? 100 आवर। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में एक कैचमेंट एरिया है 180 किलोमीटर स्क्वायर। Now the 6 hour unit hydrograph in this catchment area will have a peak flow of what? यहाँ पे भी 6 आवर्स है, पहले भी 6 आवर्स थे, बट ये जो आपको हाइड्रोग्राफ मिला था वो डायरेक्ट रन ऑफ की वजह से था, अभी आपको जो पूछा है वो यूनिट हाइड्रोग्राफ की वजह से है। सो पीक में कोई फ़र्क पड़ेगा? हियर यू आर हैविंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, उसका पीक आपको सीधा 40 दिया है। सो मैं सीधा इसको नन ऑफ दिस करके 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड सेम पीक आएगा ऐसा बोल सकती हूँ? नो। what is the meaning of DRH and unit hydrograph? What is the meaning of DRH? What is the difference between DRH and unit hydrograph? DRH जो अकर होता है वो किसी भी x वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से हो सकता है, बट यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है even if it is DRH, it is going to occur due to only 1 unit of effective rainfall. ठीक है, तो ये जो DRH मुझे दिया है या इसका जो पीक वैल्यू दिया है वो किसी x अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल के लिए है। मुझे क्या पूछा है? सेम कंडीशंस के लिए अगर 1 यूनिट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल है तो पीक कितना आएगा। सो इफ़ आई एम हैविंग सम x वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, इसके लिए मेरा पीक 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो 1 के लिए कितना होगा? ठीक है, 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल के लिए। तो पहले मुझे ये x फाइंड करना पड़ेगा, देन आई कैन लीनियरली गेट द आंसर। सो व्हाट इज दैट x? इफेक्टिव रेनफॉल। हाउ टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेनफॉल? फ्रॉम दिस कंडीशंस और फ्रॉम दिस डेटा, इफेक्टिव रेनफॉल is equal to volume of the storm to catchment area. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ टू कैचमेंट एरिया, इसको मैं डिवाइड करूँ तो मुझे इफेक्टिव रेनफॉल मिलेगा।
Am I having the catchment area? Yes, it is 180 किलोमीटर स्क्वायर. What about the volume of runoff? मुझे ये कंडीशंस दिए गए हैं. अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर दूँ, the area under this DRH will give me the total volume because this graph is Q versus T. तो इसका जो भी एरिया होगा वो मुझे क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ. सो मुझे ये न्यूमरेटर में मिल जाएगा. हाउ टू फाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ? सो बेसिकली आई जस्ट पुट इट हियर डायरेक्टली. वॉल्यूम कितना है? हाफ इंटू 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 100 आवर्स. 1 hour will be 3600 seconds because this is also in meter cube per second. Catchment area कितना है? 180 किलोमीटर स्क्वायर. सो इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल मिल जाएगा एंड दैट इज कमिंग टू 0.04 meters. If you solve this, you will get the depth of effective rainfall as 0.04 meter या फिर उसको simplify करें तो 4 सेंटीमीटर. मीन्स के ये जो आपका DRH है उसमें 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड पीक है, 6 आवर का स्टॉर्म है और ये किसकी वजह से हुआ है? 4 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से. So now I can simply say that if 4 centimeter effective rainfall is giving 40 meter cube per second peak, 1 centimeter will give how much? 10 meter cube per second. 40 by 4 meter cube per second. 4 सेंटीमीटर के लिए 40 है तो 1 सेंटीमीटर के लिए 10 हो जाएगा. और ये 4 कैसे फाइंड किया हमने? इट इज़ इक्वल टू डेप्थ ऑफ द रेनफॉल कितना है? वॉल्यूम डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया गिवन है, वॉल्यूम हमने इससे फाइंड किया. वॉल्यूम कैसे फाइंड किया? दैट एरिया अंडर द DRH विल गिव यू नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ. So by this you will obtain the value as 10. Okay, so DRH है तो 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट सेम कंडीशंस में आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ कम अमाउंट ऑफ फ्लो देगा. कितना देगा? ओनली 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड एज डैश. सो आपका ये जो क्वेश्चन है वो वेल हाइड्रोलिक से रिलेटेड है. आपके वेल के केस में आपका जो भी वाटर कलेक्ट होता है इन बिटवीन द वॉइड्स एंड पोर्स, उसको हम दो चीज़ों में बाइफरकेट कर सकते हैं. एक वॉल्यूम है आपका इफेक्टिव पोरोसिटी, दैट इज योर वन वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. जितना भी आपके ग्राउंड के सरफेस के नीचे वाटर है इन अंडर द सैचुरेटेड वाटर टेबल, उसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो हम यील्ड कर सकते हैं, जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कुछ पोर्शन ऐसा है जो वो सॉइल होल्ड करके रखेगी अगेंस्ट ग्रेविटी, विच वी विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट. तो जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम इफेक्टिव पोरोसिटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं. सो दिस इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यील्ड करेगा डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये जो वॉल्यूम रिटेंशन में जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन. डिस्चार्ज का मतलब ही यील्ड हुआ. ठीक है, डिस्चार्ज इज नथिंग बट द यील्ड. जितना आप ऑब्टेन कर सकते हैं दैट इज नथिंग बट योर डिस्चार्ज. सो स्पेसिफिक यील्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, स्पेसिफिक स्टोरेज इज नथिंग बट स्पेसिफिक रिटेंशन, तो ये आंसर नहीं हो सकता. स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो टोटल कैपेसिटी की बात है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. सेफ यील्ड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको मिल सकता है, बट हियर इट विल बी स्पेसिफिक यील्ड. सो स्पेसिफिक यील्ड इज द आंसर फॉर दिस. इट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल. Okay, so with this MCQ I finished this particular series. We will also continue with the other set of questions next time. Thank you till then.